السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سپورٹس بلیٹن میں بات کریں گے پاکستان سری لنکا ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے، موسم کا احوال بتا رہے ہیں۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی، اور ابھی رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی سرکاری عمارتوں کی شمسی توانائی پر منتقلی کا عمل تیز کرنے کی ہدایت، پالیسی سازی کو جلد حتمی شکل دی جائے، بجٹ میں متبادل توانائی ذرائع کے لیے اقدامات پر توجہ دی جائے، شمسی منصوبوں سے سستی بجلی کے ساتھ درآمدی ایندھن کے بل میں بھی کمی آئے گی، وزیراعظم۔ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور حکومت میں لاہور سے دانستہ طور پر بدلہ لیا گیا، بین الاقوامی کمپنیز کو بے جا ہراساں اور سیاسی بھرتیوں سے ادارے تباہ کیے، ملک کی ترقی کے سفر کو روکنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ چینی بینکس کے ساتھ معاملات طے پا گئے، پاکستان نے ادائیگی پر کوئی جرمانہ ادا نہیں کیا، بیرونی ادائیگیوں کے لیے بروقت اقدامات یقینی بنائے ہیں، شیل کمپنی پاکستان میں اپنا کاروبار بند نہیں کر رہی، صرف عالمی انویسٹر تبدیل ہو رہا ہے، وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کو معاف نہیں کریں گے، سیاسی دہشت گردوں کے خلاف سخت ایکشن لینا ہوگا، عوام اور فوج نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر امن قائم کیا، افغانستان فرار ہونے والے دہشت گردوں کو چیئرمین پی ٹی آئی واپس لائے، انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا خوازہ خیلہ میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ خیبر پختونخوا پر 10 سال نالائق اور کرپٹ حکومت مسلط رہی، نااہل لوگ دہشت گردی واپس لے کر آئے، عوام کو مسائل سے نجات دلائیں گے، پارٹی کو ملک کے ہر کونے میں مضبوط کریں گے، آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون مؤثر پارلیمانی قوت بن کر ابھرے گی، چیف آرگنائزر مریم نواز کی وفود سے گفتگو۔ حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان معاملات طے پا گئے، ٹی ایل پی نے مطالبات منظور ہونے پر احتجاج ختم کر دیا، تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کو یقینی بنانے کے لیے لاہ عمل تیار کر رہے ہیں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ فیک نیوز پوری دنیا کا مسئلہ، یہ کلچر سیاست کے لیے انتہائی خطرناک ہے، جمہوری اور معاشرتی اقدار کے فروغ میں میڈیا کا کردار اہم ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند کرنے کے حق میں نہیں، ضابطۂ اخلاق پر عمل ہونا چاہیے، چیئرمین پی ٹی آئی نے اقتدار کی ہوس میں منافرت اور انتشار کی سیاست کی، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ احتساب بلا تفریق ہونا چاہیے، اس بارے میں آئین میں کوئی ابہام ہے نہ ہی کسی کو استثناء، سپریم کورٹ قواعد و ضوابط طریقہ کار بل کی کوئی شق آئین سے متصادم نہیں، معاون خصوصی عرفان قادر۔ 9 مئی کا سانحہ اور ایک اور شرپسند گرفتار، محمد الیاس کا تعلق باندیش گاؤں سے ہے، بھائی محمد ابراہیم نے تمام حقائق بیان کر دیے، زمان پاک لاہور میں ہونے والی سازش کو پی ٹی آئی کارکنوں نے بے نقاب کر دیا، شرنگیزی کی مکمل منصوبہ بندی چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری سے 1 دن پہلے ہو چکی تھی۔ بحیرہ روم میں یونان کی ساحل پر کشتی حادثہ، ہلاکتوں کی تعداد 78 ہو گئی، 12 پاکستانیوں سمیت 104 کو زندہ بچا لیا گیا، 500 سے زائد لاپتہ، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کشتی حادثے میں جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار، ایتھنز میں پاکستانی سفارت خانہ ہم وطنوں کی شناخت و لواحقین کی مدد کی فراہمی کے لیے مسلسل مصروف عمل۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کی انتہا، خواتین اور بچوں کو ہراساں کرنا معمول بن گیا، مقبوضہ وادی بڑی جیل میں تبدیل، گھروں پر چھاپوں نے کشمیریوں کی زندگی جہنم بنا دی۔
मोदी का भारत मुसलमानों और अकलियतों के लिए गैर महफूज। उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों की बर्बरियत। साहिल नामी मुसलमान को दरख्त से बांधकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सर मूंडकर इश्तियाल अंगेज नारे लगाने पर मजबूर करते रहे। रूस का यूक्रेनी हमलों को नाकाम बनाने का दावा। ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने वाले मुतअद्दिद ड्रोन्स तबाह। सेनेगाल और जनूबी अफ्रीका के सदूर की सरबराही में अफ्रीकी रहनुमाओं का दौरा यूक्रेन। तनाज़े के खात्मे और एतमाद साजी के लिए इक़दामात के लिए 10 निकात पेश। यूक्रेनी इलाकों से रूसी फौज के इनखला से अमन मुज़ाकरात मुमकिन होंगे। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ऐसे कोई इशारे नहीं मिले कि रूस जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन। अमरीका मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की राह में रुकावट है। फ़लस्तीनी आवाम से मुतालिक अमरीका का दोहरा मयार है। जमहूरियत और इंसाफ का अलमबरदार फ़लस्तीनियों के हकूक़ की बात पर खामोश है। अपने हकूक़ के लिए जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। सदर महमूद अब्बास का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज। बाबर आजम की क़यादत में 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी की वापसी। टॉप ऑर्डर बैटर मोहम्मद हुरैरा और ऑलराउंडर आमिर जमाल पहली बार टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा। जनूबी अफ्रीका के मॉर्ने मॉर्कन बॉलिंग कोच मुकर्रर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि सरकारी इमारतों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली का अमल तेज किया जाए। लाहौर में मुतबादिल तवानाई ज़राए से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। शमसी मनसूबों की तकमील से सस्ती बिजली के साथ दरामदी ईंधन की मद में कीमती ज़र मुबादला की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि बजट में हुकूमत ने मुतबादिल तवानाई ज़राए पर खुसूसी तवज्जो दी है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि शमसी तवानाई से मुतालिक पॉलिसी को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पीटीआई के 4 साल दौरे हुकूमत में लाहौर से दानिस्ता तौर पर बदला दिया गया। मुल्क की तरक्की का सफर रोकने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने ये बात लाहौर में तुर्क कंपनी अल-बुराक के सदर अहमद अल-बुराक की सरबराही में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने बैनुल अक़वामी कंपनीज को बेजां हिरासा किया। कौमी कंपनीज को तबाह करके सियासी भर्तियों से इदारों को तबाह किया गया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अल-बुराक कंपनी ने लाहौर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबों में गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौर में हमने अहले लाहौर को आलमी मयार की सहूलतें फराहम की और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी से जदीद सफरी सहूलतें मुहैया हुई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के शोबे पर तवज्जो दी गई और रोजगार के मौके पैदा हुए। इस मौके पर अल-बुराक ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया। साबिक रुकने कौमी असम्बली सैयद जावेद अली शाह ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात की है। इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल और अवाम को रिलीफ की फराहमी पर गुफ्तगू हुई। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है कि चीनी बैंक्स के साथ अदायगियों के हवाले से मामलात बाहमी मुशावरत से तय पा गए हैं। उन्होंने कहा कि शेल कंपनी पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद नहीं कर रही बल्कि अपने हिस्से से एक और बैनुल अक़वामी सरमायाकार को फरोख्त कर रही है। तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे, तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। राना इफ्तिखार का पैकेज शामिल करेंगे। यहाँ आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की चीनी बैंक्स के हवाले से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, यहाँ आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को माफ़ नहीं करेंगे। सियासी दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। स्वात के इलाके ख्वाज़ा-खेला में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम और फौज ने अपनी जानों का नजराना देकर अमन कायम किया, लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने अफगानिस्तान फरार होने वाले दहशतगर्दों को मौका फराहम किया। मजीद क्या है रिपोर्ट बताएंगे हमें हसन तारिक भट्ट। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दहशतगर्दों का मुकाबला करके मुल्क में अमन कायम किया, जिससे रोजगार बढ़ा, माशी सरगर्मियों में तेजी आई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दों की पुष्टपनाही की। जो सिलेक्टेड हम पे मुसल्लत किया था, वो जाते जाते जो नुकसान कर दिया है,
जाते जाते उसने वो तमाम दहशतगर्द जो आपकी लड़ाई की वजह से, आपकी बहादुरी की वजह से, वो जो तमाम दहशतगर्द अफगानिस्तान भाग चुके थे, उनको खान साहब ने वापस भी करवाया और यहां भी आबाद करवाया। और एक बार फिर दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हर शहरी 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता है। हसास तंजीबात पर हमलों और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। तमाम जो सियासी जमातें हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा एक ही राय है कि जो मई 9 में मुलव्विस लोग थे, जिन्होंने हमारा यादगार शोहदा को जला के रख दिया, जिन्होंने जिन्ना का घर पे हमला कर दिया, जिन्होंने GHQ पे हमला कर दिया, जिन्होंने हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला कर दिया, उनके लिए एक साफ पैगाम है, हम आपको नहीं माफ कर सकते हैं। आपको हम इबरतनाक एग्जाम्पल बना देंगे। आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि कोई भी सियासी जमात इंतखाबात से राह फरार इख्तियार नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि चीनी बैंक्स के साथ अदायगियों के हवाले से मामलात बाहमी मुशावरत से तय पा गए हैं। उन्होंने कहा कि शेल कंपनी पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद नहीं कर रही, बल्कि अपने हिस्से से एक और बैनुल अक़वामी सरमायाकार को फरोख्त कर रही हैं। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि चीन के बैंकों को अदायगी में कोई जुर्माना अदा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मई और जून में बैरूनी अदायगियों के लिए बरवक्त इक़दामात किए। जून के महीने में जो हमारी जो मेन पेमेंट्स जो ड्यू थी, उसमें 1 बिलियन जो था वो चाइना डेवलपमेंट बैंक का था और 300 मिलियन बैंक ऑफ चाइना के थे। हमने फिर चाइनीज़ दोनों बैंक्स के साथ रब्ता किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, और उनको हमने ये ऑफ़र किया कि हम ये आपकी पेमेंट्स जो हैं बजाय आखिरी हफ्ते से हम इनको पहले पेमेंट कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी वो गुज़रा हुआ जो कल जुमा था उसमें उन्होंने वो पेमेंट पाकिस्तान को वापस कर दी। 500 मिलियन की 2 पेमेंट, ये टोटल 1 बिलियन जो है वो चाइनीज़ यानी स्टेट टू स्टेट जो हमारी डीलिंग होती है वो भी ड्यू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी रिन्यूअल के हवाले से हर चीज़ इन ऑर्डर है और वो भी अपने वक्त पे आने पे यानी आखिरी हफ्ते में जो ड्यू डेट्स है उनके ऊपर इंशाल्लाह वो भी रिन्यू हो जाएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि शेल कंपनी के हवाले से बेबुनियाद क्यास आराइयाँ की जा रही हैं। शेल अपना जो बिजनेस है वो बंद नहीं कर रहा पाकिस्तान, जो कुछ मीडिया में लिखा गया। शेल अपना जो बिजनेस चूँकि वो बिजनेस रहेगा, तो उसमें किसी जो कहते हैं कि इतने एम्प्लॉयज़ जो हैं 100 एम्प्लॉयज़ वो फारिग हो जाएंगे, वो ऐसी बात नहीं। शेल तीसरी चीज़ ये है कि शेल जो भी फैसला करेगा वो हुकूमत पाकिस्तान और मुख्तलिफ जो अप्रूवल्स होते हैं इन शेयर्स को भेजने के लिए वो भी उसका भी पाबंद है और उसको भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। चौथी बात ये है कि शेल अपने एक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अपने शेयर्स बेचना चाहता है। वो उस पर हमें हमारे लिए ए के नाम हो वो शेयर्स, बी के नाम हो, पाकिस्तान में बिजनेस उसी तरह चलेगा जिस तरह है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि शेल कंपनी के पाकिस्तान में ऑयल टर्मिनल पहले की तरह अपना काम जारी रखेंगे और शेल का नाम तब्दील ना करने के हवाले से नए सरमायाकार के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा पर 10 साल नालायक और करप्ट हुकूमत मुसल्लत रही। नाअहल लोगों की वजह से दहशतगर्दी वापस आई। हम अवाम को मसाइल से निजात दिलाएंगे। उन्होंने ये बात साबिक अरकान पार्लियामेंट शाहजिगुल आफरीदी और ताज आफरीदी की सरबराही में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही। मरियम नवाज ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर और सच्चे लोगों पर झूठ और फरेब की हुक्मरानी रही। मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले खिदमत करने वालों के काफिले का हिस्सा बने हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून में विफाक पाकिस्तान के तमाम रिंग शामिल हैं। पार्टी को पूरे मुल्क के हर कोने को मजबूत करेंगे।
शाजी गुल आफरीदी और दूसरे रहनुमाओं ने पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि मरियम नवाज ने जिस बहादुरी से हालात का मुकाबला किया वो तारीख की सुनहरी मिसाल है। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मुकाम, वफाकी वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और दूसरे रहनुमा भी मुलाकात में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने पार्टी कारकुनों को अवामी राबता मुहिम शुरू करने की हिदायत करते हुए कहा है कि आइंदा इलेक्शन में हमारी जमात मौसर पार्लिमानी कुव्वत बनकर उभरेगी। लाहौर में पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी अवैस लगारी, नदीम अब्बास रबीरा, अब्दुल मजीद खान, खानान खलील और नईम खान बाबा से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की सियासत खिदमत से इबारत है। पार्टी रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून जनरल कौंसिल इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मामला तय पा गए हैं। TLP ने मुतालबात मंजूर होने पर एहतजाज खत्म कर दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। इसको यकीनी बनाने के लिए लाहे अमल तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक उमर। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात सियासी नहीं बल्कि मजहबी और अवामी नौइयत के थे। बेशतर मुतालबात मंजूर कर लिए हैं। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले से हम सब के जज्बात वाबस्ता हैं। इसको यकीनी बनाने के लिए इत्तफाक राय से एक तरीकाकार वज़ा किया गया है और इस हवाले से कमेटी भी तश्कील दे दी है। 12 मुतालबात में 10 मुतालबात नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लक थे। नामूस रिसालत जो है वो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। कुछ मैयर्स तय किए हैं कि किस तरह से हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुमकिन बना सकते हैं और उन इक़दामात को उठाने से जो है वो ऐसे लोग जो गुस्ताखाने शान रसूल हैं उनको जो है वो रोका जा सकता है, उनको सजा दी जा सकती है, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जा सकता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वफ्द के सरबराह मौलाना शफीक अमीनी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बहुत तदब्बुर से मसले को समझा है और इसके हल के लिए यकीन दहानी करवाई है, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची से शुरू होने वाली एहतजाजी रैली को ख़त्म करने का फैसला कर रही है। गुजरांवाला से आगे हुकूमत वक्त ने हमारे साथ राब्ता किया और हमारे मुज़ाकरात शुरू हुए। वो मुतालबात जो कि नामूस रिसालत के हवाले से थे या अपनी बहन नाफिया सिद्दीकी के हवाले से थे, अल्हम्दुलिल्लाह जो बातचीत हुई तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि पुरअमन तरीके से ये हमारी बातचीत जो है वो मुतालबात हुकूमत ने मान लिए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो कौम की बेटी हैं। उनकी रिहाई के हवाले से हुकूमती कोशिशों में मजीद तेजी और बेहतरी ला रहे हैं। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी बुनियाद 2014 में रखी गई। एक शख्स ने इदारों को धमकियां दी और उन पर हमले किए। तफसील इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि अवामी मसाइल का हल पहली तरजीह है और मिलकर अवाम के मसाइल हल करेंगे। उन्होंने कहा कि ताजिर बरादरी ने हमेशा मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है। वजीर दाखिला ने कहा कि नफरत की सियासत को 2014 के धरने से शुरू किया गया। वो नफरत की सियासत जिसे 2014 में शुरू किया गया धरने से, ये आज बात हो रही है कि जी ये 9 मई को ये सारा कुछ हुआ। ओ भाई ये 9 मई को नहीं हुआ, ये 2014 में क्या उस वक्त थानों पे हमले करके खुद अपने बंदों को जबरदस्ती नहीं छुड़ाया, उसकी वीडियोस मौजूद है। क्या उस वक्त सरेआम ये नहीं कहा गया अफसरों के नाम लेके IG SP फलां फलां मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा? क्या उस वक्त बिजली के बिल नहीं जलाए गए? क्या ये नहीं कहा गया कि बैंकिंग चैनल से पैसे ना भेजें, आप मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से पैसे भेजें, हुंडी के जरिए से पैसे भेजें? सिविल नाफरमानी अगर ये नहीं है तो और पे क्या सिविल नाफरमानी होती है? राना सनाउल्लाह ने कहा कि माजी में हम पर झूठे मुकदमात बनाए गए, हमारी क़यादत को बदतरीन इंतकामी सियासत का निशाना बनाया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। 4 साल में वो मुल्क जिसके मुतल्लक 2013 में पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा था कि ये मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है, ये मुल्क दहशतगर्दी की नजर हो रहा है, ये मुल्क लोड शेडिंग की नजर हो रहा है, जब इन तीनों चीजों से निकल आया और उसकी शरह नमू जो है वो 6.2% हो गई,
अगर 7% के ऊपर मुल्क जो है वो तरक्की करे तो ना उसमें कोई बेरोजगार होता है, ना उसमें कोई भूख से मरता है, और लोगों के कारोबार जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। उन्होंने कहा कि पाक फौज मुल्क का दिफाई इदारा है, माजी में कभी किसी ने हसास तंसीबात पर हमले नहीं किए। एक शख्स ने लोगों को इदारों के खिलाफ उकसाया। एक शख्स कहता था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इसे ही सब छोड़ गए हैं। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, फैसलाबाद। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि फेक न्यूज़ पूरी दुनिया का मसला है, ये कल्चर सियासत के लिए इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि चेयरमैन PTI ने इक़्तिदार की हवस में मुनाफरत और इंतशार की सियासत की। तफसील बता रहे हैं ताहिर जाफरी। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के प्रोग्राम झूठ सच में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फेक न्यूज पाकिस्तान का नहीं बल्कि एक आलमी मसला है। फेक न्यूज का कल्चर सियासत के लिए इंतहाई खतरनाक है, जिसके खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के सद्देबाब के लिए कानून साजी की जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि नौजवानों के जहन में नफरत के बीज बोने की साजिश को कौम ने मुसरद कर दिया है। एक शख्स ने प्रोपेगेंडा टूल के जरिए झूठ बोलकर, नफरत फैलाकर, फसाद और इंतशार का नैरेटिव करके किस तरह 4 साल इस मुल्क की तबाही की है। अगर सोसाइटी का हर जुज़, सोसाइटी का हर स्टेक होल्डर एक रिजॉल्व कर ले और उसकी कानून साजी मौजूद हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही हो, उसकी डेटरेंस हो, तो सोसाइटीज़ इसी तरह इवॉल्व करती हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें जमहूरियत की कंटिन्यूटी के साथ जुड़ी हैं। एक सवाल के जवाब में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून तामीरी और अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। हुकूमत ने अवाम और बिलखसूस नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद प्रोग्राम मुतारिफ कराए और रवा माली साल के बजट में इन मनसूबों के फंड्स में इजाफा किया गया। जिस तरह ये हमारा सेहत कार्ड है, जैसे हमारा यूथ प्रोग्राम है, जैसे हमारा BISP है, ये वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं जो आवाम के लिए। और इस बजट में भी आपने देखा होगा कि उनको बहुत, उनके बजट को भी बढ़ाया है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन को काफ़ी ट्रांसपेरेंट किया है, टारगेटेड किया है। जैसे रमज़ान पैकेज होता है, यूटिलिटी, तो ये सब वो टारगेटेड चीज़ें हैं जो सोसाइटी को भी बेहतर करती हैं, लोगों के राइट्स को इंश्योर करती हैं और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है उसको बेहतर तरीके से हैंडल करती हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया मुआशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। इनफरादी सतह पर रवैयों में तब्दीली से इज्तिमाई सोच में बेहतरी आएगी और कौमी तरक्की का अमल तेज होगा। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, मामले खुसूसी इरफान कादिर कहते हैं कि एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए। इस बारे में आइन में कोई इबाहम है, ना किसी को कोई इस्तस्ना हासिल है। लाहौर में होने वाली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान।
गवर्नर हाउस लाहौर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम के मुआवने खसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर ने कहा कि सियासतदान और ब्यूरोक्रेट और मुख्तलिफ इदारे एहतसाब के अमल से गुजरते हैं और नैब और दीगर इदारे उनका एहतसाब करते हैं। उन्होंने कहा कि अदलिया में खुद एहतसाबी का निज़ाम चल रहा है, अगर कोई बदनवानी करता है तो उसका एहतसाब तो होना चाहिए। जज साहिबान जो हैं उन्होंने काफ़ी हद तक एहतसाब जो है वो अपने हाथ में लिया हुआ है, वहाँ पे वो खुद एहतसाबी करते हैं। अगर हम इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखें तो फिर अगर जजेस अपनी खुद एहतसाबी करते हैं और कोई और इदारा उनकी एहतसाब नहीं करता या करने नहीं देते तो फिर बाकी इदारों में भी फिर खुद एहतसाबी होनी चाहिए। फिर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी खुद एहतसाबी कर लिया करें और जो हमारे सियासतदान हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी खुद एहतसाबी कर लिया करें, लेकिन समहाउ ऐसा होता नहीं है। मुआवने खसूसी इरफान कादिर ने कहा कि अदलिया में बेंच किसी एक फर्द की मर्जी से नहीं बनने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कवायद ज़वाबित बिल की कोई शिक आइन से मुतसादिम नहीं। आइन में इस बारे में बिल्कुल कोई ऐसा उभाम नहीं है। आइन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कोई भी जज जो अपनी कैपेसिटी खो जाए फैसला करने की या कोई उसकी कोई मेंटल कंडीशन हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो वो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको उस मनसब से हटा सकती है। और दूसरा लिखा हुआ है कि अगर वो मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकब पाया जाए तो फिर भी उसको उसके मनसब से हटाया जा सकता है और उसके जितने भी पर्क्स वगैरह हैं सारे वो ख़त्म किए जा सकते हैं। मुआवने खसूसी ने कहा कि हुकूमत और पार्लियामान अदलिया और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और मौजूदा क़यादत मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इंसदार दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें थाना शादमान लाहौर नजर आतिश करने और जलाओ घिराव के मुकदमे में गिरफ्तार PTI रहनुमा एजाज चौधरी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जज अबहर गुल खान ने तफ्तीशी ऑफिसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मंजूर कर लिया। नाज़रीन, सालिह 9 मई का एक और अहम शरपसंद गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद इलियास नामी शरपसंद मानदेश गांव का रिहायशी है। शरपसंद इलियास के भाई मोहम्मद इब्राहिम ने अपने भाई के गुमराह होने का पर्दा चाक कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इब्राहिम वल मोहम्मद फजल हालिम ज़िला दीरलोर तहसील बलामबट गाँव मानदेश का रहने वाला हूँ। मेरा छोटा भाई मोहम्मद इलियास जो तहरीक इंसाफ का सरगर्म रुकन था, पिछले 1 साल से इमरान खान के जो है ना ये फौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा उसमें जो है ना वो 9 मई के वाक़यात में जो है ना वो गिरफ्तार हो चुका है और हम बाकी लोगों को वो इसके जो है ना वो इमरान खान के प्रोपेगेंडे में ना आने की जो है ना वो करते हैं ताकि उन्होंने जो हमारे बच्चे अंदर जेलों में है उन्होंने सब ने हमारे से ताल्लुक़े का इज़हार किया है। सियासी जमात से वाबस्तगी रखने वाले शरपसंदों के एतराफ़ात का सिलसिला जारी है। ज़मान पार्क में होने वाली साजिश को सियासी जमात के कारकुनान ने बेनकाब कर दिया। इंकशाफात के मुताबिक जिना हाउस में होने वाली शरंगेजी की मुकम्मल मनसूबाबंदी चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी से एक दिन कबल हुई थी। इस हवाले से मजीद भी आपको आगाह करेंगे एक ब्रेक के बाद। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग के साथ हाजिर खिदमत हैं। भाई यही वो बातें हैं जिस पे लोग तुझे प्यार करते हैं। तार बार पल्ले नारा रे पलार। अभी तो मेरी सिर्फ मंगनी हुई है, एंगेजमेंट। साडे दिल दा परोना कोई ना तैनू चूरियां क्यों पा वे। ये पहला कहाँ है आपका जो जिसको चूरी का लालच दे रही हो आप? खिड़खिड़ हंसी दूर उदासी ताया आ गई मासी।
वेलकम बैक नाज़रीन, सियासी जमात से वाबस्तगी रखने वाले शरपसंदों के एतराफ़ात का सिलसिला जारी है। ज़मान पार्क में होने वाली साजिश को सियासी जमात के कारकुनान ने बेनकाब कर दिया है। इंकशाफात के मुताबिक जिन्ना हाउस में होने वाली शरंगेजी की मुकम्मल मनसूबाबंदी चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही हो चुकी थी। मेरा नाम अर्जम जुनेद है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। ज़मान पार्क में पहले से बनाए गए मंसूबे के मुताबिक लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमला करना था। पीटीआई लीडरशिप डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, हसन न्याजी ने अवाम को मजीद उकसाया और तोड़ फोड़ का पैगाम देते हुए लाहौर कोर कमांडर हाउस की तरफ ले गए। मेरा नाम जान मोहम्मद है, मेरे वालिद का नाम तूब खान है। खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये कहना। वहाँ पर प्लान बनाया गया था। 8-9 की तारीख में रात को 1 बजे शेख इम्तियाज का मैसेज आता है, ये अगर सुबह खान साहब को गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने भरपूर शदीद एहतजाज के लिए तैयार रहना है। हमें फिर मैसेज करता है तो आप कैंट हाउस की तरफ आ गए। मेरा नाम हाशिर खान दुरानी, इंसाफ यूथ विंग लाहौर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो लाहौर कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, इसकी जो प्लानिंग थी पहले से ज़मान पार्क में की गई थी, जिसमें लीडरशिप जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और मियां महमूद रशीद और इसके अलावा सदर शेख इम्तियाज साहब, इन्होंने पहले से प्लानिंग की थी। पहले से ही तयशुदा प्लान के मुताबिक जो कि ज़मान पार्क में तय किया गया था, जिनमें पीटीआई की लीडरशिप, जिनमें हसन न्याजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी वगैरह शामिल थे। में पीटीआई की ताकत सारे नाल मिल फरज चौक चला गया, रोड बंद किया, बट्टे सट्टे रोड फौज और धारे की रात में नारेबाजी मारी है। 9 मई को मैं जिन्ना हाउस गया, जहाँ पर जलाओ गिराओ में हिस्सा लिया और कुछ वीडियोस बनाई जिसमें फौज के खिलाफ नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल किया। ऐसा मैंने पीटीआई की क़यादत के बहकावे में आकर किया। मैं 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ज़मान पार्क में पीटीआई के बनाए गए मंसूबे के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा हूँ। वहाँ पर हमने तोड़ फोड़ की है, गमले तोड़े हैं और पीटीआई वर्कर के साथ मिलकर हमने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत का सिलसिला जारी है। ताजिर बरादरी ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया और कहा कि शरपसंदों को कड़ी सजा दी जाए। ये देख के बड़ी दुख हुआ है 9 मई का जो वाक़या हुआ है। मेरे सारे जो दोस्त हैं, अहबाब है जो मेरे साथ आए हैं, ये इनके बस आंसू नहीं बहे, बाकी हर चीज़ हो गई है। ये हम इनके भरपूर मज़ामत करते हैं जो 9 मई को वाक़या हुआ, और जिन्होंने ये वाक़या किया है उनको कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। 9 मई का जो सानिया इस मुल्क में हुआ है उसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। जो पाकिस्तान का आइन कहता है उसके मुताबिक भरपूर सजा मिलनी चाहिए। ये सारे वाक़े की मज़म्मत करता हूँ जो 9 मई में हुआ है, और ये सब कुछ जो भी यहाँ पे एक इतना बड़ा ये मामला हुआ, इतना बड़ा साना हुआ है, और इस पे साथ में जो है जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, मैं इसे चाहता हूँ कि इनको करारे वाक़ई सज़ा मिले। शोहदाए पाक सरजमीन को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम खराज अकीदत पेश करती है। लांस नाइक वकास ने 2 जून 2021 को वज़ीरिस्तान में बारूदी सुरंग के धमाके में वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। शहीद के वर्सा ने 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले शरपसंदों को वतन अजीज का दुश्मन करार देते हुए सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। माशाल्लाह वो जो है ना बहुत बहादुर सिपाही थे, अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए उन्होंने शहादत दी है वज़ीरिस्तान के अंदर। तो सबसे पहले मेरे पास कॉल आई थी, उनके उस्ताद ने की थी कि आपके भाई जो है ना शहीद हुए हैं। हमें तो फख्र हुआ है कि हमारे भाई ने अपने मुल्क की खातिर, अपने इस्लाम की खातिर जान का नजराना पेश किया है। ये बताएं जो 9 मई को जो ये मसला किया गया, हमारे शहीदों की तस्वीरें जलाई गई, ये बताओ आप शहीदों को किस तरीके से मुंह दिखाओगे, किस तरीके से सामना कर पाओगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जो शहीद होता है ये कौम का फख्र होता है। बहुत अच्छा था बेटा, और आर्मी की बहुत शौक था। अल्लाह पाक ने शहादत लिखी इसमें नसीब में, अल्लाह पाक शहादत नसीब करे। बहुत इस बात तो बेटा फख्र है मुझे। और वकास अहमद तो बहुत सबसे छोटा था, लाडा था, बस इस बात बेटा बहुत फख्र है पाक आर्मी पे जो शहादत मिल गई मेरे बेटे को।
इस नसीब में लिखी गई थी। कोयटा प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक नौजवान पाकिस्तान के चेयरमैन अब्दुल्ला हमीद गुल ने कहा कि बलूचिस्तान की सियासत नया मोड़ इख्तियार कर रही है, जिसमें तहरीक नौजवान का किरदार अहम होगा। उन्होंने कहा कि गुलजार इमाम शंबे का कौमी धारे में शामिल होना खुशाइंद है और इससे पहाड़ों पर जाने वाले नौजवानों को भी कौमी धारे में शामिल होने के लिए एक सोच और एक राह मिली है। उन्होंने कहा कि पाक अफवाज हमारे लिए बाइस फख्र है, हम उनकी लाजवाल कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली में बजट पर बहस जारी रही। ईवान ने तरक्याती मनसूबों की रकूम को महफूज करने और साल खत्म होने पर लैप्स होने से बचाने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने पेश की। रकूम न होने की वजह से मनसूबों की अदम तकमील के बायस कौमी खजाने को भी नुकसान पहुंचता है। बजट पर जारी बहस में हिस्सा लेते हुए अरकान ने कहा कि जिस तरह हर शोबे का ख्याल किया गया है, वहीं सेहत और तालीम के हवाले से दूरस्त नताइज वाले मनसूबे बनाने की ज़रूरत है। मुल्क में बढ़ने वाली महंगाई और दूसरे माशी मसाइल के हल के लिए संजीदगी से मिलकर सोचना होगा। बहरा रूम में यूनान के साहिल पर कश्ती डूबने के वाक़े पर स्पीकर ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मासूम लोगों को बैरून मुल्क ले जाने का झांसा देकर बुरे हालात से दो चार करने वालों के खिलाफ हुकूमत फौरी कार्रवाई करे। कौमी असम्बली का इजलास पीर दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। समुद्री तूफान बिपरजॉय कमज़ोर होकर हवा के शदीद कम दबाव की सूरत में भारत के इलाके रन ऑफ कच्छ और थरपारकर पर मौजूद है। अब समुद्री तूफान मशरक़ की जानिब बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज थरपारकर, उबरकोट और बदीन अजला के कुछ हिस्सों में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ठट्टा, सजावल, वीरपुर खास, हैदराबाद, बिटियारी, जामशोरो, सांगर, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, जैकबाबाद और शिकारपुर के अजला में भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। अफवाज पाकिस्तान और सिविल इंतजामिया की काविशों से सिंध में हालिया समुद्री तूफान के बायस बेघर होने वाले अफराद की अपने घरों को वापसी शुरू हो गई है। रिलीफ कैंप से घर वापस आने वाले खानदानों की रजिस्ट्रेशन के साथ हर खानदान के सरबराह को राशन टोकन भी दिए गए हैं। जिला सजावल के इलाके जाती में 2375, शाहबंदर से 9168, जिला बदीन के इलाके राहू से 3500, बदीन में 1412 अफराद अपने घरों को वापस आ चुके हैं। पाक बहरिया की जानिब से शाहबंदर के नवाही इलाकों में मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक रिलीफ ऑपरेशन के दौरान मुतासरीन में राशन और दीगर जरूरी सामान भी तकसीम किया गया। तूफान के मुमकिन खतरे के पेश नज़र कश्तियों को नेवल हार्बर में नजरअंदाज करने पर मकामी माहीगीरों ने पाक बहरिया का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। इन मनसूबों में वांटा, महर, दिलकटा खेल, रहमानी खेल रोड और अब्दुल खेल में 132 केवी ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह और सी पैक के मगरबी रूट पर पहाड़पुर सर्विस एरिया और रहमानी खेल इंटरचेंज का संगे बुनियाद शामिल है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI हुकूमत ने नाअहली का मुजाहरा करते हुए मुल्क में तरक्याती अमल को रोक दिया। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क की मुफाद में फैसले करते हुए माशी तबाही का अमल रोका, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया और मेगा प्रोजेक्ट्स पर दोबारा काम का आगाज किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि यकसा तरक्की की पॉलिसी के तहत पसमानदा इलाकों के अवाम की महरूमियां दूर करने के लिए कोशां हैं। वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने गुजरावाला में कोट आगा से सरावाली 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह किया। ये मनसूबा 4.5 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि सस्ती बिजली की पैदावार के साथ तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाइन लॉसेस में कमी और बिजली चोरी की रोकथाम पर भी तवज्जो दी जा रही है। नाज़रीन, बहरा रूम में यूनान के साहिल पर कश्ती डूबने के वाक़े में हलाकतों की तादाद 78 हो गई है। हुक्काम के मुताबिक जनूबी साहिली कस्बे पायोलिस से 80 किलोमीटर के फासले पर हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में तकरीबन 750 अफराद सवार थे, जिनमें 104 को बचा लिया गया, जबकि 500 से ज्यादा अभी तक लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों में 12 पाकिस्तानी भी शामिल हैं, जबकि लुकमा अजल बन जाने वालों में किसी पाकिस्तानी की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। यूनान में पाकिस्तानी सिफारती मिशन पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त, बाजियाबी, लवाहिकीन को मदद फराहम करने के लिए मकामी हुकाम से राब्ते में है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कश्ती हादसे में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा है कि एथेंस में पाकिस्तानी सिफारत खाना हम वतनों की शनाख्त और लवाहिकीन को मदद की फराहमी के लिए मसरूफ़ अमल है। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने कई अजला में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान मकीनों को हिरासा करने की बहिमाना सिलसिला जारी रखा हुआ है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुपवाड़ा, बारामूला, कोलगाम, इस्लामाबाद, शोपियां, पुलवामा, राजौरी और पूंछ अजला में मकीनों ने ज़राए इब्लाग को बताया है कि मुसलसल फौजी कार्रवाइयों और घरों पर छापों ने उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजी, पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकार घरों में घुस कर खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को खौफजदा करते हैं। भारतीय एहलकार कीमती
कीमती घरेलू अशिया की तोड़ फोड़ करते हैं, लोगों का माशी नुकसान करते हैं। श्रीनगर में भारतीय पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की गाड़ी ने खातून को कुचल दिया है। शाहिदी ने बताया कि राजबाग में सीआरएफ एफपीएफ की गाड़ी ने जानबूझकर एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में खातून की मौत वाक़ई हो गई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत ने यात्रियों की सिक्योरिटी के नाम पर हिंदुओं की सालाना अमरनाथ यात्रा से कबल मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया है। 60,000 इजाफी फौजियों की तैनाती से कश्मीरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया, जो 5 अगस्त 2019 से मुसलसल फौजी मुहासरे में है। साबिक अमरीका रुकन कांग्रेस एंडी लियोन, इंसानी हकूक़ के माहिरीन और कारकुनों ने ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन और उनके इंतजामिया पर जोर दिया कि वो भारत में जमहूरियत पर हमलों और मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद भड़काने में हुक्मरान जमात के वज़ीर-ए-आज़म मोदी को जवाबदेह ठहराएं। भारतीय रियासत मणिपुर में हुक्मरान इंतहा पसंद जमात बीजेपी के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासती दारुल हुकूमत अंबाल में गुज़िश्ता शब सैकड़ों मुजाहिरीन ने बीजेपी के मजीद रहनुमाओं के घरों और दफातर को आग लगाने की कोशिश की। भारतीय फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की और रबड़ की गोलियां चलाईं, जिससे मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। अंफाल में मुजाहिरीन ने जुमे की शब वजीर मुमलिकत खारजा उमूर RK सिंह के घर पर हमला करके उसे नजर आतिश कर दिया था। इससे कबल भी मुजाहिरीन ने बीजेपी की खातून वजीर के घर को आग लगाई थी। मणिपुर में तकरीब 1.5 माह से जारी नस्ली तशद्दुद में अब तक 100 से ज्यादा अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, 50 से जायद बेघर हो चुके हैं। बीजेपी की मरकजी और रियासती हुकूमतें हालात को काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और हिज़्ब इख्तिलाफ के दीगर रहनुमाओं ने मोदी और बीजेपी को हालात का जिम्मेदार करार दिया है। नाज़रीन, मोदी के भारत में गैर हिंदू और खातून होना जुर्म बन चुका है। नाम निहाद सेकुलर रियासत में मुसलमानों को बांध कर ज़दोकोब करना और इश्तियार अंगेज नारे लगाने पर मजबूर करना एक ट्रेंड बन चुका है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला शाद। भारत ख़वातीन के रहने के काबिल नहीं रहा। यही वजह है कि दिल्ली को दुनिया का रेप कैपिटल भी कहा जाता है। हिंदुस्तान में कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जब औरतों को जुल्म जबर और मजालम का सामना ना करना पड़ता हो। भारतीय ख़वातीन की हालत ज़ार इतनी मखदूश हो चुकी है कि साल 2014 से 2023 तक 3,06,235 ख़वातीन की आबरू रेजी के वाक़यात रिपोर्ट हुए। सितम ज़रीफ़ी ये है कि भारत में ख़वातीन के खिलाफ मजालम के 25% से भी कम वाक़यात रिपोर्ट किए जाते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक एक साल में भारत में औसतन 7,200 कमसिन बच्चे जिनसी तशद्दुद का शिकार होते हैं। भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2021 में 2020 के मुकाबले में ख़वातीन के खिलाफ जराइम में 15% से ज्यादा इजाफा हुआ। दूसरी जानिब हिंदुस्तान में मुसलमान होना भी जुर्म ठहरा। मोदी के राम राष्ट्र में गैर हिंदुओं को सिरे से इंसान ही नहीं समझा जाता। रोजाना हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों को गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया जाता है। भारत में जाफरानी इंतहा पसंदी ने तमाम शोबा है जिंदगी को अपनी लपेट में ले रखा है। भारतीय खवातीन हों या मुसलमान, सिख व दीगर मजहबी इकाइयां, हिंदुस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रही है। ताज़ा तरीन वाक़े में उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में हिंदू इंतहा पसंदों ने साहिल नामी मुसलमान को दरख्त से बांध कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। जाफरानी दहशत गर्दों ने मुसलमान नौजवान का सर मूंड दिया और उसे जय श्री राम कहने पर मजबूर किया जाता रहा। इंसानी हकूक का हमा वक्त राग अलापने वाली आलमी बरादरी आखिर कब भारतीय अक़लियतों और ख़वातीन की दाद रसी के लिए अमली इक़दामात उठाएगी? अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली बस कलरगहार के मकाम पर हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 10 शदीद जख्मी हो गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। मोटरवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। DIG मोहम्मद यूसुफ और सेक्टर कमांडर ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों की खुद निगरानी की। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने वली बेटानी ऑयल एंड गैस फील्ड से पैदावार का आगाज कर दिया। OGDCL के तर्जुमान का कहना है कि OGDCL 100% वर्किंग इंटरेस्ट के साथ बेटानी एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का ऑपरेटर है। वली बेटानी फील्ड से SNGPL तरसीली निज़ाम में गैस पैदावार 10 MMSCCF जबकि तेल की पैदावार 1000 BBLS यौमिया होगी। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क की तामीर और तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद पर यकीन रखती है। शेखुपुरा की तहसील फेरोजवाला में पासपोर्ट ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्किल तरीन माशी हालात के बावजूद तरक्की और अवामी फलाह का सफ़र दोबारा शुरू किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत आने वाली नस्लों की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रही है। इस मौके पर वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने पासपोर्ट का इफ्तिताह भी किया।
वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने शेखोपुरा शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने बत्ती चौक, बंद रोड, गुजरावाला रोड और दीगर मकामात पर अवामी फलाह के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को मनसूबों की बरवक्त तकमील के साथ शफाफियत को भी यकीनी बनाने की हिदायत की। कोयटा में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि जमहूरियत ही मुल्क की तरक्की का वाहिद रास्ता है। तमाम सियासी कुव्वतों को जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन से खित्ते में रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा और तामीर और तरक्की का हसूल मुमकिन हो सकेगा। और नाज़रीन, पाकिस्तान में गंधारा कल्चर को आलमी सयाहत से मुंसलिक करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में गैर मुल्की सुफरा के लिए खूबसूरत शाम सजाई गई। इस तकरीब का अहवाल शेयर कर रहे हैं अम्मा दवान अपनी इस रिपोर्ट में। बुद्ध मत की तारीख और इसके आसार पाकिस्तान के चारों सूबों और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मिलते हैं। हुकूमत की कोशिशों से अब तक मुल्क में 38 साइट्स की निशानदही हो चुकी है जो मजहबी सयाहत के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर गैर मुल्की ज़र मुबादला का बायस बन सकती हैं। ये कहना है वज़ीर आज़म के गंधारा सियाहत पर टास्क फोर्स के चेयरमैन और वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर रमेश कुमार का, जिन्होंने कदीम बुद्ध तहजीब के अहिया का बेड़ा उठा रखा है। 11th, 12th and 13th July. I want to arrange this conference here to facilitate the international community to come here, see the attractions. There is will, there is a way. आपकी नीयत साफ है तो God blessing आपके ऊपर ऐसे होती है। आधा काम आप करते हो और आधा काम मालिक आपका खुद ही कर देता है। तकरीब में गैर मुल्की सुफरा और आर्ट के दिलदादा अफराद ने शिरकत की और मौसीकी की धुनों पर इस खूबसूरत शाम को यादगार बनाया। अमादवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आज़ाद कश्मीर दिलकश नज़ारों और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। वादी जहलम में वाक़ खूबसूरत कुदरती आबशार सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। अदील अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फराबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर चिनारी और चकोठी के दरमियान जसकोल के मकाम पर वाक़ ये खूबसूरत आबशार शाहराह जहलम वैली के पहलू में वाक़ है, जिसका दूधिया पानी बड़ा ही दिलकश मंजर पेश करता है। शदीद गर्मी में जब सूरज आग बरसा रहा होता है तो आबशार के इर्द गिर्द दर्जा हरारत इंतहाई मोतदिल होता है और खुनकी का एहसास रहता है। यही वजह है कि गर्मियों का मौसम आते ही यहाँ सयाहों का हुजूम नजर आने लगता है। सयाहों के साथ साथ मकामी अफराद भी इस आबशार पर आते हैं और कुदरत की रानाइयों में खो जाते हैं। यहाँ के दिलकश मनाजर को अपने कैमरों में महफूज करते नौजवान और आबशार के पानी से अटकेलियाँ करते बच्चे खूब समा बांधते हैं। इसके साथ ये आबशार है, आबशार का बच्चों के साथ विजिट करने आए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। ये जगह बहुत अच्छी है, हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया। हमने पानी के साथ खेला, यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। आबशार के इर्द गिर्द लगाए गए चाय के खोखों पर चाय के साथ साथ खाने पीने की अशिया भी दस्तयाब हैं। आबशार के साथ साथ कचरे के ड्रम्स लगाए गए हैं, मगर ये ड्रम्स खाली नजर आते हैं। यहाँ आने वाले बेशतर अफराद खाने पीने की अशिया की बाकियात, प्लास्टिक के लिफाफे और रैपर्स आबशार के पानी में या इसके इर्द गिर्द फेंक कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से आलूदगी के बायस खूबसूरत आबशार का हुस्न भी मान पड़ने लगता है। ऐसे पॉइंट्स पर क़याम और ताम की सहूलतें फराहम करके इसे सयाहों के लिए मज़ीद पुरकशिश बनाया जा सकता है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जसकोल, चकोठी, ज़िला जहलम वैली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम इस दौरान बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
اور اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ نوکنڈی میں 47, دالبندین میں 45, فیصل آباد میں 40, موہنجو داڑو 43, جبکہ سبی میں بھی 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی. اسلام آباد میں 39, لاہور 38, کراچی میں 36, پشاور 41, جبکہ کوئٹہ میں بھی 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں. موسم کی خبروں سے اتنا ہی. کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید. سپورٹس بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان سری لنکا ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے. سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 16 رکنی قومی سکواڈ کا اعلان کر دیا گیا. بابر اعظم ٹیم کی قیادت کریں گے. فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کی ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی ہو گئی ہے. ٹاپ آرڈر بیٹر محمد حریرہ اور آل راؤنڈر عامر جمال پہلی بار ٹیسٹ سکواڈ کا حصہ بن گئے ہیں. دیگر کھلاڑیوں میں نائب کپتان محمد رضوان، عبداللہ شفیق، ابرار احمد، حسن علی، امام الحق، محمد نواز، نسیم شاہ، نعمان علی، سلمان علی آغا، سرفراز احمد، سعود شکیل اور شان مسعود شامل ہیں. جنوبی افریقہ کے مورنے مورکل کو ٹیم کا بولنگ کوچ مقرر کیا گیا ہے. سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز تیسری ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستان ٹیم کی پہلی سیریز ہوگی. قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر ہارون رشید نے کہا ہے کہ سری لنکا کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کے لیے بہترین ٹیم کا انتخاب کیا ہے. ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے نئے سیزن کا فاتحانہ آغاز کرنے کے لیے پر امید ہیں. لاہور کے LCCA گراؤنڈ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہارون رشید کا کہنا تھا کہ ٹیم کا انتخاب سری لنکن کنڈیشنز کو مد نظر رکھ کر کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تمام کھلاڑی اہم ہیں. کرکٹرز کا ورک لوڈ دیکھ کر انہیں آرام دیا جاتا ہے. دورہ سری لنکا کی تیاری کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا فاسٹ بولنگ کا خصوصی کیمپ لاہور میں شروع ہو گیا. کھلاڑیوں نے LCCA گراؤنڈ میں پریکٹس کی. کیمپ کی نگرانی قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈ برن کر رہے ہیں. فاسٹ بولنگ کیمپ 21 جون تک جاری رہے گا. بولنگ کیمپ میں 10 فاسٹ بولرز اور 14 بیٹرز شریک ہیں. ہانگ کانگ میں ایمرجنگ ویمنز ایشیا کرکٹ کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ بارش کے باعث نہیں ہو سکا. مونگ کاک میں شیڈیول میچ کا ٹاس بھی ممکن نہیں ہو سکا. دونوں ٹیموں کے یہ دوسرا میچ ہے جو بارش سے متاثر ہوا ہے. گروپ اے میں پاکستان اور بھارت کے 4-4 پوائنٹس ہیں اور دونوں ٹیموں نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. پیر کو پہلا سیمی فائنل بھارت اور سری لنکا جبکہ دوسرا سیمی فائنل پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہوگا. اسلام آباد کلب سکواش چیمپئن شپ عبداللہ عمران نے جیت لی. اسلام آباد میں ہونے والی چیمپئن شپ کے فائنل میں عبداللہ نے راجہ احسان کو ہرا کر مسلسل دوسری مرتبہ چیمپئن شپ جیتنے کا اعزاز حاصل کیا. عبداللہ عمران نے فائنل میں 3-0 سے کامیابی حاصل کر کے ٹائٹل اپنے نام کیا. ایونٹ میں مجموعی طور پر 20 کھلاڑیوں نے حصہ لیا. سابق سکواش پلیئر سلیم سیٹھی اور اکبر بابر کوچ عبدالستار نے مقابلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات اور شیلڈز تقسیم کیں. ناظرین PTV نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.